So you are good. So Yes. did you receive the assignments also? Yes, Yes. ma'am. चलिए पहले हम first we will discuss the assignments. I think today only you got the assignments. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Take 10 minutes. Take 10 minutes to do first 10 questions. Quickly do 10 questions. We will discuss these questions. Ma'am, actually, I have not distributed that assignment yet. अभी तक नहीं आई सर इनके पास? नहीं, ma'am, that is in the class only. मिल Or जाएगी should अभी I? नहीं? हाँ जी, हाँ जी, सर इतनी देर आप दे दो, मैं इतनी देर इनको कुछ और करवा देती हूँ. हाँ जी. और थैंक यू. चलिए बेटा. One topic your teacher has told me to do. One is apomixes. Have you done apomixes in the class? Yes, ma'am. Let's see. Let's see. Maintain silence. Maintain silence in the class. So, apomixes. Do you know the meaning of the term apomixes? You know mixing. What is apo? Do you know that? Apo means, if you remember these terms, then you will remember the topic also, right? Apo means away. And mixes is mixing of gametes. So, apomixes means away from. Mixing of gametes means no fertilization. First thing. Second, one more term you must have studied, that agamospermy. Have you heard this term? Yes or no? No, ma'am. यही से एपोमिक्सिस का ही दूसरा नाम एगैमोस्पर्मी, ये आ जाता है. स्पर्मी, यहाँ भी हमने हिंदी में हम करते हैं ना संधि विच्छेद, बस वही हम बात कर रहे हैं. स्पर्मी, एक तो स्पर्म्स हो जाते हैं मेल गैमीट, बट हियर स्पर्म्स में स्पर्मी मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड, प्रोसेस ऑफ formation of seed. And what is gamo? Gamo means gamo. Gami का मतलब होता है fertilization. Gami is fertilization, formation of seed is spermy. A means opposite. किसी के आगे A आ जाए तो वो उसका opposite हो जाता है. Agamo. Agamo means without fertilization. क्या हो रहा है without fertilization? Seed बन रहा है, embryo बन रहा है, right? So you can write, what is agamospermy? Again, same thing. Formation of seeds or embryo without fertilization. ठीक है, लिख लो ये बेटा, write down these things. As such, these things are not present in NCERT books. That's why I am telling you to write down. फिर ये टॉपिक करेंगे, फिर हम असाइनमेंट करेंगे. असाइनमेंट बाद में देखना, अभी से नीचे रख लो, पहले ये लिख लो. राइट डाउन दिस.
agamospermy या apomixis. Apomixis is same. Formation of embryo without fertilization. Okay, जल्दी लिखो. +2 students है. Write quickly. Written everybody? Yes, sir. Written, ma'am? Okay, sir. Thank you. Now, see what happens if there is no agamospermy. What is the normal process? See here, ध्यान से देखना. कि ये क्या है? ये ओव्यूल में न्यूसेलस है, राइट? न्यूसेलस 2n, यू नो, ये सारे सेल्स, सारा ये आपको सब याद आएगा बिकॉज यू हैव डन दिस, राइट? होल ऑफ द ओव्यूल इज फिल्ड इनसाइड बाय न्यूसेलर सेल. वन सेल गेट्स एनलार्ज्ड. जल्दी से बताओ इसका क्या नाम है? One cell of the nucellus gets enlarged. What is the name of this cell? Yes, tell me. Megaspore cell. Very good. Megaspore mother cell. Megaspore mother cell. अभी तक meiosis कहीं नहीं मैंने बात की. So it is still 2n. This is a normal process I am telling you. It undergoes meiosis to form. जल्दी से बताओ. सम स्टूडेंट सर किसी ना किसी बच्चे को एक एक करके खड़ा करते रहो. हाउ मेनी megaspores will be formed? Yes, one student tell me. 1 2 3 4 10 12 13. कितने बनेंगे? 4 megaspores because there is only, yes, sit down, because there is only one megaspore mother cell, so there will be, ये देखो हमेशा यही अरेंजमेंट होगा. साथ साथ में बताती जाऊंगी. सो दिस इज हमेशा एवरी टाइम लीनियर टेट्राड. बेटा जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं तो माइक्रोस्पोर्स का कई तरह से अरेंजमेंट होता है, बट इन मेगास्पोर्स देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट, लीनियर टेट्राड ऑफ megaspores. Tetrad means group of 4, right? But you know, and what is genetic constitution? Yes, the girl in blue shirt जो extra table पे बैठी है, खड़े हो जाओ बेटा. Yes, stand up. Tell me, is it megaspores, haploid की diploid, n की 2n? कोई और नहीं, only she will tell. कोई बात नहीं, गलत बोलोगे no problem. Tell me. It is haploid. N है क्योंकि meiosis हो गई है. बैठो बेटा. It is N. आधे हो गए हैं क्रोमोसोम नंबर, राइट? देन इसके पीछे 4th रो में सेम साइड पे जो ग्रीन शर्ट में गर्ल, स्टैंड अप. यस 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 यस. टेल मी how many megaspores contribute to form the female gametophyte? One. Which one? Is it micropylar or chalazal? Chalazal. Very good, very good. Better, better. These 3 megaspores, they degenerate. Only this one, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ. Only this chalazal megaspore, chalazal functional megaspore
it is haploid. Right? This you know, and it undergoes then प्री न्यूक्लियर डिवीजन. ध्यान से देखो, ये बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं थोड़े से, इसलिए यू कैन सी प्री न्यूक्लियर डिवीजन. Can anybody tell me what do you mean by pre-nuclear division? Yes, anybody? Raise your hands. हाँ जी, खड़े होके बताओ सर जिसको कह रहे हैं. टेल मी. कोई बात नहीं, नहीं आता खड़े हो जाओ. Angiogenesis not followed by cytokinesis. Yes, which is not followed by cytokinesis. It means, अब मुझे आपने थोड़ा सा 1 मिनट कि is it this one or this one? A के B? It is B. Very good. That's absolutely true. देखिए बैठो बेटा. So what happens that ये देखो बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी ये ओव्यूल की वॉल है. This is wall of ovule. And then ये जो मीगास्पोर है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ भी येलो कर दिया. It gets enlarged. ये enlarge हो गया. ये अंदर क्या है? मीगास्पोर. और इसने प्री न्यूक्लियर डिविजन्स की. यहाँ पे दोनों पोल्स पे 3 न्यूक्लियस आ गए और बीच में 2 न्यूक्लियस आ गए. हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर? 8 न्यूक्लियाई. राइट. एंड देन स्टूडेंट को कंफ्यूजन, ये वॉल्स में कंफ्यूजन जरूर होती है. बाहर ये ओव्यूल की वॉल है, ये येलो वाली मीगास्पोर की वॉल है बेटा, याद रखना है. अगेन ओव्यूल की वॉल and then cytokinesis occurs. ये मीगास्पोर की वॉल तो है ही है, but inside it cytokinesis occurs, and this you know, antipodals, these are synaptoids, filiform apparatus, egg. और ये देखिए ये लार्ज जो सेल है, दिस इज सेंट्रल. all nuclei, so 8 nucleated 7 cell, you all know. all nuclei की हम बात कर रहे हैं, सेल की बात अब हम नहीं कर रहे. all nuclei are haploid. and this is embryo sac या female gametophyte. This is normal. Is it right? Is it clear to all of you? ये पहले से क्लियर है आपको? चलिए अब क्या आता है? अब है, हाँ बना लो तो बहुत अच्छा है बेटा. ड्रॉ इट. बना लो. This is always good. More the diagram you draw, more the beneficial. करो बनाओ. आप अभी कर रहे हैं बना लो. बातें बिल्कुल भी नहीं. पता लगता है सिंगर आया वहाँ. ये चीज जो है ना, ये वाली चीज बच्चों को बहुत, दिस इज इंटेग्यूमेंट्स है ना, मैंने अभी बनाई नहीं है, बट इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल एंड इनसाइड देयर इज वॉल ऑफ द मीगास्पोर. ये याद रखना है. न्यूसेलस सारा खत्म हो जाता है फॉर गिविंग न्यूट्रिशन टू द मीगास्पोर, एक्सेप्ट फ्यू. एक्सेप्शंस तो है ही है.
soon as you do complete this, please tell me. Done, students? Yes, Okay, okay, that's good. Now what happens? If there occurs, double fertilization, you must have done this, right or not? ma'am. And it results in formation of 2n zygote. या तो fertilization हो गई, ये तो apomixis नहीं है. Then another thing, in some cases, no fertilization. ध्यान से पहले सुनना है. Haploid egg forms haploid embryo directly. Although this embryo generally dies, this is called as non-recurrent agamospermy, or this is also called as parthenogenesis. ये आपने बेटा प्लांटी में किया होगा शायद. What is parthenogenesis? Have you heard about parthenogenesis? Parthenogenesis के बारे में सुना है कभी? Yes, ma'am. ठीक है. Formation of embryo without fertilization. If fertilization does not occur, then this is egg. Haploid egg है ये. बाकी सब cells तो degenerate कर जाएंगे, but haploid egg directly forms the embryo. This is called as non-recurrent agamospermy or parthenogenesis. ठीक है. आपने ये अभी आप एनिमल्स में शायद पढ़ेंगे. ठीक है. थोड़ा सा कई बार टीचर्स रेफरेंस दे देते कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ फीमेल्स है. राइट. हमारे में तो मेल्स फीमेल्स है. देयर आर सम reptiles in which only some insects also. Do you remember honeybee? Honeybee के बारे में पढ़ा है. The female honeybee, the queen honeybee lays 2 type of eggs. Do you know that? Yes or no? Tell me. 2 मिनट तुम्हें बताऊं, फिर हम इस पे दोबारा से स्लाइड पे आते हैं. वैसे लिखना मत ये कि the queen honeybee, fertile female, it lays 2 types of eggs. Fertilized eggs, internal fertilization होती है, and unfertilized eggs.
fertilized eggs form females, जबकि unfertilized eggs undergo parthenogenesis and it forms males. और जो इनको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन्स, और ये हैप्लॉइड है, फीमेल्स डिप्लॉइड है. दिस इज पार्थेनोजेनेसिस. एंड रिमेंबर दैट जो ये मेल्स है बेचारे कमजोर होंगे, एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, दे डाई आफ्टर पॉपुलेशन. इनका काम सिर्फ हनी बी के साथ कॉम्पुलेशन करना है, उसको अपने स्पर्म्स दिए और ये खुद मर जाते. इनका काम सिर्फ ये है. क्यों मर जाते हैं ये इतनी जल्दी? क्योंकि हैप्लॉइड है, वीक. Do you get me? So what is parthenogenesis? Parthenogenesis टर्म लिख लो ऊपर करके कहीं पे, या एक टर्म का इसका मीनिंग लिख लो. Parthenogenesis, development of organism from haploid egg only, या from egg, development of new organism from female gamete or egg without fertilization. इसको हम कहते हैं parthenogenesis. This is called as parthenogenesis. So this is also parthenogenesis और नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी. अगर यहाँ पे लिख लिया है तो साथ में लिख लो कि such embryos are non viable. ये जो बने हैं पार्थिनोजेनेटिक एम्ब्रियोस, हैप्लॉइड है, तो राइट डाउन हैप्लॉइड. Yes. Parthenogenetic embryos not survive or are non-viable. Write down that. और ऊपर ये भी लिख लेना, पार्थिनोजेनेटिक जो है ना, सिंगल सेट है क्रोमोसोम्स का, बेचारे कैसे सरवाइव करेंगे, डिजीजेस हो जाएंगे, कई कुछ होगा. Okay, done. May I rub it? चलो ऊपर वाला करते हैं पहले, फिर मुझे बताते हैं. सेकंड आपने करना. अब हम सेकंड की बात करें. ये भी हम रखते हैं. नाउ सेकंड, अगेन ये ओव्यूल है, मेगास्पोर मदर सेल है. नाउ व्हाट हैपेंस, नो meiosis. टू एंड डिप्लॉयड जो है मेगास्पोर मदर सेल
directly functions as functional megaspore. Megaspore mother cell does not act as megaspore mother cell, but it directly functions as megaspore 2n है. So it enlarges. Again देखिए, ये megaspore mother cell की wall है, but it directly function as, this is 2n and this act as megaspore. बाकी सब वैसा ही. Then free nuclear division. FND means free nuclear division. मतलब सेल वॉल नहीं बन रही, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं. वही 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, एंड ऑल न्यूक्लियाई डिप्लॉयड टू, राइट. इसके बाहर एक और वॉल बनाते हैं. एंड वही एम्ब्रियो सैक बनेगी, बट सभी सेल्स क्या है, सभी सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है. सेंट्रल सेल में जो 2 न्यूक्लियस है, but each nucleus diploid. So this is 2n egg. So in some, no fertilization. वही same process. No fertilization. Again in some, 2n egg directly forms 2n embryo. This is viable. Viable means survive. ये terms पता होना चाहिए, survive करते. And this is called as recurrent agamospermy या फिर डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस. लिख लो फटाफट से, ये बना भी लो जल्दी से. This is diploid parthenogenesis का मतलब मैंने आई हैव टोल्ड यू. डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस क्या है वो बता. And it is also called as recurrent agamospermy. Done. May I do further?
No, ma'am. कर लो कर लो कर लो, क्विकली डू. चले जी करें आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. Now, now you know that megaspore mother cell, it is diploid, that is right. Then next is वही normal meiosis. Now what happens? Meiosis and we say fertilization. ये normal जो हो रही. You know this is ovule. ध्यान से इधर देखना बेटा. ये इंटेग्यूमेंट्स है, you all know, but some cells of the इंटेग्यूमेंट्स, let us say कोई से भी, इन्होंने भी एक एम्ब्रियो बना दिया. दिस इज एम्ब्रियो बाय इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट सेल्स. कुछ इंटेग्यूमेंट के सेल्स ने एक एम्ब्रियो बना दिया. इंटेग्यूमेंट यू नो 2n है, तो एम्ब्रियो भी 2n है. इसके अंदर न्यूसेलस था. न्यूसेलस ने भी एक एम्ब्रियो बना दिया, यहाँ पे बना दिया, कहाँ पे बना दिया, राइट. दीज आर न्यूसेलर एम्ब्रियोस, पहले ही बनने शुरू हो गए. Not all, but few cells of the nucellus. And then there is, you know, जो normal हमारा है. This is normal, you know, fertilized embryo. But you see here that in addition to the fertilized embryo जो zygote से बना है, there is formation of diploid nucellar embryos and integumental embryos, so that the ovule it develops into seed.
ये सीड है, जैसे सीड पोर्ट्स है ये, एंड हियर इट हैज, मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, इट हैज मेनी एम्ब्रियोज, राइट? सो दिस इज सीड having many diploid embryos, and this is called as adventive polyembryony. Adventive polyembryony means when a seed has more than one embryos. Out of these, one is zygotic embryo and other are adventive embryos formed from integuments and new cells. Is it okay? Now ये जल्दी से, all embryos are viable. All viable embryos. और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, that is citrus, नींबू जो है, मैंगो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आ जाती है ये एग्जाम्पल, या गिव द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एमसीक्यू नीट में भी बहुत बार आया हुआ है और आपके +2 में भी बहुत बार आया। सिट्रस एंड मैंगो याद रखना है। ये करो जल्दी से, फिर मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट भी बना दूंगी, बिकॉज 3 marks question or few questions in NEET or 3 mark question in your board exam, it may come from aponics. डन, चलिए आगे बेटा। वर्कशीट नहीं करनी? यस मैम। करते कोई बात नहीं, वर्कशीट भी करते हैं, एक ये टॉपिक कर ले बेटा। ओके मैम। यस ये कंप्लीट कर ले हम, फिर हम आगे चलते हैं। ये समझ में आता है आपको कि नहीं, जो मैं करवा रही हूँ या कोई भी टीचर करवाता है स्क्रीन पे? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? यस मैम। नहीं, कहीं से नो की भी आवाज आई है, कहाँ से आई है नो? मुझे बता दो, क्या नहीं समझ में आया? स्टैंड अप एंड टेल, बता दो बेटा। समझ आ गया। आ गया समझ? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं, फटाफट से एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। टू टाइप्स, नाम से पहले दोबारा से यही जो हमने किया है उसी को ही हम रिवाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, दैट इज गैमोस्पर्मी, और यहाँ पे है एम्ब्रियोनी। ध्यान से बातें बिल्कुल भी नहीं। गैमोस्पर्मी में 2 टाइप, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट।
Agamosperm is similar to parthenogenesis. Female gamete से एम्ब्रियो बन रहा है, सिंपल. रिकरेंट में एम्ब्रियो formed from haploid egg or female gamete. नॉन रिकरेंट सिंपल है, एम्ब्रियो फॉर्म्ड टू एन मीन्स डिप्लॉयड और फीमेल gamete. एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. पॉलीएम्ब्रियोनी में होती कई तरह की है. मैं आई विल टेल यू ओनली अबाउट एडवेंटिव, क्योंकि आपकी बुक में यही है. अदरवाइज देयर इज क्लीवेज ऑल्सो. एडवेंटिव में एक तो 2n zygotic embryo which is formed from zygote along with many 2n embryos from nucellus Is this in one seed. This is adventive polyembryo. चलिए जी, अब हम वर्कशीट पे काम करते हैं. जल्दी से करो. फर्स्ट 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अटेम्प्ट करो, और हम पीछे से गर्ल्स जो है लास्ट बेंच पे जो बैठी है वो आएंगी आगे. बट डू इट, टेक योर टाइम, डू फर्स्ट 5 क्वेश्चन. जल्दी से, बातें बिल्कुल भी नहीं. इट शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस. लास्ट. हाँ जी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो, मैं भी साइड पे करना. Your assignment only. Don't focus here and there. Easy है, कोई मुश्किल नहीं है. They are easy questions. Mainly based on your +2 board exams. बातें नहीं एकदम. बेटा पता है क्या, सब चीजें रिकॉर्ड होती है, फिर रिकॉर्डिंग में इतनी सारी आवाज कैसे लगती है. लास्ट में जो गर्ल्स है, लास्ट बेंच पे जो गर्ल्स है, आ जाओ सारा, एक एक करके आ जाओ फटाफट. कम क्विकली. सर इनको भेज दिया. आ जाओ फर्स्ट, आ जाओ, यहीं पे खड़े होके बोलो, नो प्रॉब्लम. यस, क्वेश्चन नंबर 1. Arrangement of in a normal embryo sac in a dicot plant is. ये ऑप्शन. हाँ जी, क्या है? 3 प्लस या 2 प्लस, क्या है? 3 + 2 + 3. Yes, it is 3 + 2 + 3. बिल्कुल ठीक है. You know 3 antipodal cells. यहाँ पे एग सेल और बीच में जो है ये न्यूक्लियस है, that is central cell. So 3 + 2 + 3. ठीक है, बैठो बेटा. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट गर्ल. लॉन्ग फिलामेंट थ्रेड्स प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ यंग कॉब ऑफ मेज. छल्ली लेते हैं हम, बाल से नजर आते हैं.
What are that hairy structures? Anthers. नो बेटा, मुझे एक चीज बताओ. नॉट टेल मी. चलिए अभी हम देखते हैं. यू विल कम टू दिस. सी हियर. ये नहीं देखना कि एंथर है, स्टाइल है, या जो भी कुछ दिया हुआ है, हेयर है, ओवरीज है. मुझे ये बताओ. सी हियर, सी हियर. जो वो छल्ली है वो फ्रूट है कि फ्लावर है, क्या है वो? जो छल्ली के दाने हैं वो क्या है? सीड है, फ्रूट है, क्या है वो? Seeds and fruit. कंप्लीट इनफ्लोरेसेंस है which developed into a composite fruit, है ना. एक बड़ा सा फ्रूट बना है. ठीक है. तो क्या फ्रूट में कभी एंथर्स होते हैं? कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं. ओनली शी विल रिस्पॉन्ड. प्लीज, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट. Don't discuss the things with each other. Discuss with me. Only then you will gain the things. Yes, tell me. Are there any anthers in the fruit? Yes or no? No, ma'am. मुझे बताओ, एंथर किसका पार्ट है? मेल का कि फीमेल का? Male. ओनली शी विल टेल. जो फ्रूट बना है या जो लास्ट में सीड फ्रूट बनता है वो मेल बनाता है कि फीमेल बनाता है? Male. मेल बनाता है फ्रूट कि फीमेल बनाता है? फीमेल बेटा. जो फ्रूट्स बनने हैं, कुछ बनना है, वो कौन बनाता है? ओवरी बनाती है. या उसके अंदर जो सीड्स है वो कौन बना रहा है? ओव्यूल्स बना रहे हैं. एंथर्स का जो काम है, उसने तो पोलन ग्रेन्स लिबरेट किए और एंथर्स तो झड़ गए. उसके बाद एंथर्स का कोई काम नहीं है. एंथर्स नहीं रहते तो यहाँ पे एंथर्स तो है नहीं. अब बताओ आंसर क्या आएगा? Style. स्टाइल. ओके, बिल्कुल ठीक है बेटा. मेनी स्टाइल. क्योंकि यहाँ पे क्या है? इनफ्लोरेसेंस है. ध्यान से देखो, इनफ्लोरेसेंस है. बहुत सारे फ्लावर्स है. हर फ्लावर में एक सीड बन रहा है, फ्रूट बन रहा है, ग्रेन बन रहा है. मेल्स तो झड़ गए तो स्टाइल रह गए. सो दैट हेयरी स्ट्रक्चर्स आर स्टाइल. ठीक है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. बैठो बेटा. आंसर इज लॉन्ग स्टाइल. व्हाई दे हैव लॉन्ग स्टाइल? यस, व्हाई मेज हैज लॉन्ग स्टाइल? एनी स्टूडेंट? इतने लंबे लंबे स्टाइल क्यों है उनके? अच्छा, मेज में ये बताइए. मेज में ऑल ऑफ यू आर डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट. टेल मी, इस तरफ जो लड़के बैठे हैं लास्ट बेंच पे, द बॉय, सम बॉय स्टैंड अप. व्हाई मेज हैज लॉन्ग स्टाइल्स? अच्छा, मेज ग्रास है कि लेग्यूम है? क्या है मेज? बैठो बेटा. एनी स्टूडेंट कैन आंसर माय क्वेश्चन. बेटा, मेज जो है ना वो ग्रेमिनी फैमिली है. ग्रेमिनी मीन्स ग्रासेस फैमिली. एंड यू हैव स्टडीड दैट इन ग्रासेस. इधर ध्यान से, आपस में नहीं. ग्रासेस में बेटा पता है क्या होगा? मैं बीच बीच में चलो तुम्हारा टाइम थोड़ा वेस्ट करती हूँ, बट सी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स विद रीजंस, शायद अभी कुछ कर जाओगे, बट लेटर ऑन अगर पढ़ाई नहीं करोगे, अच्छी तरह से ग्रास्प नहीं करोगे, यू विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम योर जॉब्स. व्हाई? बिकॉज एआई इज कमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो ढीले टीचर्स होंगे मेरे जैसे, वो भी एलिमिनेट होंगे. ठीक है. ओनली गुड टीचर्स, गुड स्टूडेंट्स, गुड वर्कर्स, दे विल रिमेन. बाकी सबको एआई नहीं, हमें जो है ना मेरे जैसे को कहना कि तू तो भाग, अब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तुझे आता क्या है. ठीक है. सो लिसन केयरफुली. सिर्फ ये मत फोकस करो कि प्लस 12वीं के पेपर देने हैं, 12वीं के पेपर देने हैं. नो, आगे भी तो कुछ करना ही होगा ना. बायो ली है आपने. ठीक है. तो जो मेज है, मेज, व्हीट, राइस, ये सब ग्रासेस है. एंड टेल मी एवरीबडी, ग्रासेस में किससे पॉलिनेशन होती है? विच इज द पॉलिनेटिंग एजेंट इन ग्रासेस? विंड या एयर. और विंड और एयर में क्या चाहिए है? पोलन शुड बी लाइट एंड
स्टिग्मा शुड बी एक्सट्रूडेड, बाहर को आने चाहिए स्टिग्मा, तभी तो हवा से पकड़ेंगे, ठीक है। और स्टिग्मास बाहर को कैसे आएंगे कि लॉन्ग स्टाइल्स हो। सो व्हाई देयर इज लॉन्ग स्टाइल्स इन मेज, लिखो क्वेश्चन ऊपर करके कहीं ना कहीं लिख लो, ये चीजें इंपॉर्टेंट, रीजन असर्शन में क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई मेज हैज लॉन्ग स्टाइल्स? Because it is pollinated by wind. It is pollinated by wind. Books बंद कर दो, हमें books नहीं चाहिए. And the stigma, to take the stigmas outside, to take the stigmas outside, there are long styles. There are long styles. ठीक है, रीजन पता हो क्यों है स्टाइल्स, क्यों है। नेक्स्ट इज, हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ, यस yes, the third girl from the last bench, हाँ जी, it is generative cell। जल्दी से इधर देखना, बोर्ड पे देखिए बेटा, जल्दी से, tell me, this is, you know, let us say this is pollen grain, ध्यान से, जिसको नहीं पता वो लिख लेना, pollen grain और male gametophyte। बनाते चलो, डायग्राम्स तो जितने बनाओगे उतना तुम्हें जो है, you know, this is exine, this is exine, this is intine, it has two cells। जल्दी से मुझे बता दो बेटा, ये बड़े वाले सेल का क्या नाम है? वन क्या है, टू क्या है? यस, टेल मी, व्हाट इज वन? Vegetative cell. Yes, it is vegetative cell, or it is also called as tube cell. The second one is generative cell. And remember that vegetative cell has lot of reserve food and many vacuoles also. बहुत सारा इसके पास रिजर्व फूड है बेटा। It is the generative cell which divides, बातें बिल्कुल भी नहीं, which divides to form two male gametes। ठीक है, that is absolutely correct, बैठ जाओ बेटी, बैठ। Next student, which of the following is surrounded by callose wall? It is नहीं बेटा, पोलन ग्रेन नहीं, it is माइक्रोस्पोर मदर सेल, callose wall। ये देखो, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, बाहर इसके callose wall है, and it further divides into 4 microspores। तो आंसर इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए जी, एक क्वेश्चन हम और करते हैं बॉयज में। यस, लास्ट सेकंड बेंच पे आई कांट सी बॉयज बैठी है कि गर्ल्स बैठी है। आई नो गर्ल्स बैठी है ब्लू शर्ट में। हाँ जी, खड़े हो जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, which one of the following pairs of plant structures has haploid number of chromosomes? Axicell and antipodal cells. Very good, very good. Next girl. In angiosperms, functional megaspore develops into Embryo cell. embryo sac। What typical embryo sac का क्या नाम है बेटा? No. Polygonum type of embryo sac, है ना? जो बातें नहीं। Polygonum embryo sac।
Next girl. Which one of the following statements is wrong? Yes, C option. When pollen is shed in two cell states, double fertilization does not take place. ये गलत है. That's it. Question number 8. इसके आगे जो स्टूडेंट्स yes, इसके अगले बेंच पे A option. A. What is the function of germ core? Where the pollen tube forms. Pollen tube. Yes, yes, yes. Question number 9. Next student. A option. A option. Tapetum. Tapetum is the, it is the part of anther and it helps nourishing the developing pollen. Very good. Next student. Can't be degraded. Can't be degraded. Pollen जो है बिल्कुल ठीक है. It cannot be degraded. क्या आपका टाइम भी हो रहा है? एक चीज मेरी बात सुनो. You have got the chemistry worksheet? नहीं, सिर्फ बायो की मिली है और की है. बायो की मिली है मैं सिर्फ. चलिए, आई विल सी. आपको बाकी की मिल जाएगी. अगर नहीं पहुंची तो मैं आपको पहुंचा दूंगी. ठीक है, संडे है, काम करके आना. ठीक है सर, थैंक यू. Ma'am,